किया होगा। रितेश सर को प्लीज सर, रितेश हाँ, सर को होस्ट। ठीक है, ठीक है। कहाँ चले गए? हैंड डाउन हो गया रितेश जी, हैंड अप कर दो। हाँ आगे। अच्छा अच्छा, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट। अच्छा, इसमें डाल दिया होस्ट वाले से ठीक 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 हो गया। मैं वीडियो चला देता हूँ, ठीक है? वीडियो चलाओ सर, वीडियो चला दीजिए और उसके बीच में सारे डीएम एएसएम को होस्ट दे दीजिएगा। ठीक है। The company that has remained steadfast and kept the right principles. The company headed toward the world with the right principles. The company that grows with its customers and shares generously. We are Atomy. Atomy, which has been growing ever since its establishment in 2009, achieved 2.2 trillion Korean won in global sales in 2021 and surpassed 16 million global members. Atomy's #1 goal of going beyond customer satisfaction to customer success continues to be its top priority to this day. Providing good quality products at reasonable prices, Atomy's competitiveness lies in the nature of distribution. The absolute quality and absolute price product philosophy that Atomy has practiced since its inception is included in all of its products, such as health functional foods, beauty, living, food, fashion, home appliances, and more. Hemohim, which has been the top seller in its industry for 7 consecutive years, has passed 1.7 trillion Korean won in cumulative sales. It has gotten international patents in 21 countries and is forging a unique new path for health functional food products. Absolute Skincare, which has become one of the best-selling cosmetics in the industry with sales of 100 billion Korean won every year since its launch, was recognized for its advanced technology with King Sejong Award from the Korean Intellectual Property Office in 2021, for the first time in the cosmetics industry. The Fame, another luxury cosmetic product reborn with upgraded ingredients and technology, is also loved by consumers as it reflects Atomy's product philosophy. Atomy is practicing customer-centered management in all of its corporate activities, and this was recognized by becoming the industry's first to acquire customer-centered management certification for 2 consecutive years. Starting with the U.S. branch in 2010, Atomy is a global company which opened 22 branches in Asia, South America, Oceania, and Europe, with 16 million members worldwide. Atomy opened branches in New Zealand, Turkey, the United Kingdom, Kazakhstan, and Kyrgyzstan, and is planning to open 20 more branches within the next 5 years. Atomy's GSGS strategy, which stands for Global Sourcing Global Sales, allows the supply of products that align with the absolute quality and absolute price philosophy through Atomy's global sales network. Atomy's success system
in which the company runs all seminars, allows any member to succeed regardless of individual ability. This is the driving force behind Atomy's distinctive growth. The next generation of online and offline distribution broadcasters, which presents Atomy's vision to members around the world regardless of time and space. Entertainment and media, which converges business and culture. Atomy provides the vision of a global success system which transcends time and space by providing a variety of services. Atomy provides various support measures for partnering companies such as cash payment within 1 week from delivery, interest-free operating fund loans, and joint quality management systems, among others. These create a culture of accompanied growth. Sharing is a mission that all companies must fulfill. Atomy's executives, employees, partnering companies, and members all practice sharing together to improve the lives of all members of society. Whenever sharing is needed around the world, global branches will be united to support happiness for all. The company that holds true to its principles while creating a new distribution culture. The company expanding globally with the trust of people around the world. The company that dreams of customer success while moving beyond customer satisfaction. The company that cherishes the spirit. We are proud Atomy. Over to Lily, please. Thank you so Please, much, sir. sir. I'm audible. Yes, please. हमारे इरादों की उड़ान अभी बाकी है, थोड़ी जमीन थोड़ा आसमान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सरहदों को लांघना बाकी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल, माई सेल्फ ललित शर्मा, और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं एलाइट ग्रुप के माध्यम से। और आज तक का सबसे शानदार सेशन आप लोग यहाँ पर हमारे साथ एंजॉय करने वाले हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन को एंजॉय करने के लिए? क्योंकि आपका जोश इस बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी है। आर यू एक्साइटेड? Yes. आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड। रीजन 100%. क्या है कि इंडिया की मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी आज आपको ट्रेंड करने के लिए और एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए आपके साथ प्लग हैं जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन कहते हैं कि आप एक बार हौसला रखिए, ठीक है? हौसला इतना जरूरी एक पार्ट होता है आपकी जर्नी का कि आपको वहां तक पहुंचाने में वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रिएट करता है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम किसी भी सेशन की शुरुआत अपने कंपनी मोटो के साथ करते हैं। और सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से हमारे हॉनरेबल डॉक्टर हेनगिल पार्क सर को, इन्होंने इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए बनाई और हम सब लोग इस एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, तो कोऑपरेट करेंगे। ललित जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई एम ऑडिबल सर? Yes, please. ओके, थैंक यू सो मच सर। सो अगर हम लोग प्रेजेंटेबल रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी हम सभी यहाँ पर 384 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। सो आप सभी लोग कंपनी मोटो के लिए तैयार हैं? Yes. यस, मैं कहूंगा हम लोग कंपनी मोटो को जिस तरह से बोलते हैं, बिल्कुल हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। पहले मैं बोलूंगा, देन आप लोग फॉलो करेंगे। आर यू रेडी? Yes. शेयर इज द स्पिरिट। There is the spirit.
Create the vision. Create the vision. बढ़िया, बहुत आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह कंपनी मोटो में मेरे साथ दिया। सभी लोग म्यूट कर लेंगे सेल, Wait, sorry. म्यूट कर ली। ओके, थैंक यू। तो आप सब लोग आज के इस शानदार सेशन के गवाह होने वाले हैं, लेकिन उसके बदले में आपको जो यहाँ पे करना है वो है आपका अटेंशन। और अटेंशन ऐसा होना चाहिए कि आपका फोकस हमारे स्पीकर को सुनने पर, उनके नोट्स। अच्छा ये बताइए कितने लोग आज डायरी पेन के साथ हैं? डायरी पेन आप लोगों ने ले रखा है, क्योंकि आज आपकी जिंदगी में रेवोल्यूशन आने वाला है, वो चेंज आने वाला है, वो चेंज आने वाला है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं। राइट, तो उसके लिए आप मैक्सिमम नोट्स बनाएंगे, सभी लोग डायरी पेन कैरी करेंगे, और अगर आप प्रॉपर ड्रेसअप हैं तो वीडियो पर रहेंगे। ये सेशन लगभग 1 घंटे जाएगा, और ये 1 घंटा आपकी जिंदगी तो नहीं बदल सकता, लेकिन इस 1 घंटे में लिया गया निर्णय आपकी पूरी जिंदगी नहीं, आपकी 3 जनरेशन चेंज कर सकता है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरी हुई है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों की हुई है। राइट, तो आज के जो स्पीकर हैं उनको बुलाने से पहले, क्या आप लोगों ने पावर हाउस का नाम सुना है? पावर हाउस का नाम सभी लोगों ने सुना है। तो मैं पावर हाउस को बुलाने से पहले, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे आप सब लोग कहते हैं कि हम लोग जिस सिस्टम में रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, तो हम सब लोग बहुत खुश नसीब हैं कि इलाइट ग्रुप के माध्यम से हमें ये मीटिंग्स लगातार मिल रही हैं और हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। राइट, तो मैं यहाँ पर जो भी इलाइट ग्रुप के हमारे चेयरपर्सन है, मैं उन लोगों से एक बार परमिशन लेना चाहूंगा, क्या कंटिन्यू करें सर, स्पीकर को बुलाया जाए? यस प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो जैसे करेंसी के लिए पाउंड का और 6 के लिए ग्राउंड का, ऐसे ही अनुज सर को इनवाइट करने के लिए आप सभी लोगों के तालियों के साउंड का होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग क्लैपिंग नहीं करेंगे तो सर को हम ग्रेट वीडियो में देखकर आप सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट, सभी लोग हैप्पी हैं और इसी तरह बने रहेंगे हमारे साथ। और मैं आप सभी के लिए नन अदर देन ग्रेट पर्सनैलिटी, हम्बल पर्सनैलिटी, इंडिया की मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी को इनवाइट करना चाहूंगा। अनुज सर, क्या आप रेडी हैं? यस ललित सर, मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस सर, परफेक्ट। वेलकम सर, स्टेज इज योर्स। आइए और आज के सेशन को शानदार बनाइए। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच हमारे पावरफुल होस्ट ललित शर्मा सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं आज भाई साहब अनुज शर्मा, सेल्स मास्टर एटमी इंडिया, आप सभी चैंपियंस का, ड्रीमर्स का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आज के इस शानदार सेशन में, आज के इस शानदार शाम में। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? एक बार मुझे कोई भी बता देगा। ओके, यस सर, परफेक्ट। अरुण मीना सर का ये आ गया है, वेरी गुड। और क्या आज की शाम को हम जबरदस्त बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं? तो इसके लिए हमने तो तैयारी की है। आप सब लोगों ने तैयारी करी है क्या? हेलो एवरीवन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने तैयारी करी है? अगर तैयारी करी है तो अभी चैट बॉक्स में मैं आपका कमेंट्स देखना चाहता हूं। रेडी टू विन, रेडी टू विन। आज का हमारा जो एक लाइन है वो है रेडी टू विन, हम जीतने के लिए तैयार हैं। ओके, और मैं सबसे पहले तो उन सभी लीडर्स का भी अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा जो आज पहली बार हमारे इस सेशन में इंट्रोड्यूस हुए हैं। बहुत सारे हमारे जो एटोमियंस है दिन रात बहुत कड़ी मेहनत के साथ वर्क कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और आज उसी का नतीजा है कि वो बहुत अच्छी पोजीशन पे भी हैं और अपने काम को बहुत सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं, और आने वाले समय में वो बहुत शाइन करने वाले हैं, नो डाउट। लेकिन मैं यहाँ पर जो आज पहली बार इनवाइट हुए हैं उनका हाथ जोड़ के विनम्र सभी
एटोमियंस की तरफ से, पूरे एटोमियंस परिवार की तरफ से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा कि आप आज जिस सिस्टम में आए हैं, एक एटमी परिवार, एटमी फैमिली में आए हैं, आपका स्वागत है। और नो डाउट मैं आपसे बहुत बड़ी बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात आपसे जरूर बोलूंगा कि ये सेशन मुझे अभी 30 मिनट मिले हैं, इसके बाद एक और बहुत शानदार पर्सनैलिटी, एजुकेशन सेंटर लीडर है, सेल्स मास्टर है, वो आपको आधा घंटा यानी कि 1 घंटा है इस सेशन का। और यकीन मानिए मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, मैं अनुज शर्मा आपसे कमिटमेंट करता हूं कि ये 1 घंटा 60 मिनट ये आपकी जिंदगी के वो 60 मिनट, वो 60 मिनट हैं जिसमें अगर सच में आपने अपना पूरा फोकस करा, कुछ नोट्स बनाए और समझ लिया और पूरी ईमानदारी के साथ इस सेशन में रहे, तो यकीन मानिए अगले जो ये साल आने वाला है और ये दिसंबर जब एंड होगा तो आप उसका फर्क मतलब बहुत बड़ा देखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। और मैं फिर से पुनः एक बार सबका आभार, स्वागत, अभिनंदन। तो दोस्तों आज का जैसा आपने नाम सुना होगा, बिलीव योरसेल्फ, बिलीव योरसेल्फ, इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ही है खुद पर विश्वास करना। और जब एक आदमी नौकरी कर लेता है, किसी भी जॉब में जाता है, कुछ भी कर लेता है, शॉप खोल लेता है, बहुत सारी चीजें हम कर, मेहनत मजदूरी करता है, और उसके बाद जब वो खुद पे भरोसा करता है ना, तो वो कुछ ऐसा काम करता है कि पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट होती है। तो यकीन मानिए अब मैं आपको एक जो शानदार हमारा सिस्टम है एटमी, उससे आप प्लग हो चुके हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से आज कुछ चीजें शेयर करूंगा और उसे आप बिल्कुल पूरे ध्यान से, दिल से सुनिएगा। और अभी मुझे परमिशन दीजिएगा ललित सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके सर। योर स्क्रीन इज विजिबल सर, कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक आपने अभी लॉगिन नहीं किया है व्हाट्सएप पे, क्रोम में लॉगिन नहीं किया है शायद। नहीं सर, लॉगिन है। नहीं, जूम लॉगिन नहीं है ना सर? हाँ स्क्रीन शेयर है सर। आप क्रोम ओपन कीजिए, क्रोम, जूम देखिए, जूम लॉगिन है आपका। नीचे जूम पे आइए सर, जूम पे। नहीं क्रोम के साइड में। ललित जी ठीक है, यस, वो पीपीटी शेयर कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। ओके ठीक है। क्लियर है सर? क्लियर है क्या ललित सर? ओके, यस सर। थैंक यू सो मच सर। वेट, एक लाइन बोलना चाहूंगा आप सबके लिए, प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि वक्त से छीन लाएंगे हम अपने हिस्से की जीत, वक्त से छीन लाएंगे हम अपने हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा नहीं। दोस्तों मेरी क्या वीडियो शो हो रही है ललित सर? यस सर, परफेक्ट। आपका वीडियो भी ऑन है, आपका पीपीटी भी क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों बिलीव, चेंज योर एटीट्यूड एंड देन एक्शन। मैं आपको कुछ आज बहुत सारी चीजें अदरवाइज ना बता के अपने पर्सनल कुछ रिलेट करना चाहूंगा चीजों से, और शायद वो आपको इंस्पायर करेंगी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों से मतलब सेल्फ की जो भी मेरे रोल मॉडल हैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर रहा हूं। और मैं आज आपको कुछ अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। दोस्तों ये एक आप देख रहे हैं मेरी जर्नी की एक शुरुआत, जो लेफ्ट आपको दिखाई दे रहा होगा एक फोटो, एक राइफल है हाथ में, और उसके बाद एक ये वाला फोटो मिडिल में दिखाई दे रहा है, और एक ये दिखाई दे रहा है जो आपको एटमी के मंच पे खड़ा हुआ लड़का है, ये मैं ही हूं। और ये जब मेरी शुरुआत हुई मेरी जॉब की, तो जिंदगी बड़ी टफ थी, जिंदगी इतनी टफ थी मैं आपको बता भी नहीं सकता कि क्या माहौल रहा है मेरी लाइफ में। और
मैंने क्या महसूस करा होगा, क्योंकि उस टाइम की जो जॉब थी 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, पता ही नहीं लगता था कि जिंदगी में क्या चल रहा, बस ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसी जगह सेलेक्ट हो गए थे स्टार्टिंग में ही, और एक कोर्स भी करा हुआ था स्पेशल पुलिस में आके। ये बात है सन 2006, अब से लगभग 17 साल पहले की मैं बात आपसे बता रहा हूँ। तो उस टाइम मन में एक छोटा सा ये विश्वास था कि कुछ तो बड़ा करना है, कुछ तो बड़ा करना है, कुछ तो करेंगे यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहीं आए और ऐसे ही रह गए, कुछ तो बड़ा करेंगे अपनी लाइफ में। और वो एक सोच, वो सोच चलती चली गई, और लगभग सन 2009-10 में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ बड़ी चीज है। और क्योंकि अपने जो ब्लड में है ना दोस्त, अपने ब्लड में क्या है, ईमानदारी है। कुछ भी करेंगे, रोटी सूखी खाएंगे, नहीं खाएंगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ईमानदारी ना, ईमानदारी जरूर है, ईमानदारी वो हमेशा रहती है और वो रखनी है लाइफ टाइम। तो ये था कि कुछ तो काम ऐसा करना है जिससे बड़ा बन सके। तो मुझे कुछ और समझ में नहीं आया, मुझे ये समझ में आया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा गेम है और इससे सब कुछ करा जा सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि मुझे इतना समझ में आया कि कुछ लेफ्ट राइट लोग जोड़ने से, कुछ लोगों को बताने से तो जिंदगी बदल सकती है भाई। बाइक भी आ सकती है, कार भी आ सकती है, और बड़े पैसे भी आ सकते हैं। तो मुझे बस इतना समझ में आया, और सन 2010 में मैं उसमें काम करना स्टार्ट करा। और कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव भरे पल रहे मेरी जिंदगी में, वो सबकी जिंदगी में आते हैं। फिर अपनी जॉब पे भी फोकस करते रहे और यहाँ भी काम करते रहे। कुछ पर्सनैलिटी वहां से यहाँ पे डेवलप हुई, और जिस चीज का तलाश हो सकता है कि आप बहुत सही टाइम पे एटमी में प्लग कर गए, क्योंकि आपकी हो सकता है पहली कंपनी हो और आपने अभी स्टार्टिंग ही करी हो, आपको एटमी मिल गई, यू आर लकी, आप बहुत लकी हो। लेकिन मुझे एटमी एटलीस्ट कम से कम 10-11 साल, अपनी जिंदगी के 10 साल बिताने के बाद एटमी मिली, और मैं अब भी अपने आप को लकी समझता हूँ, फील करता हूँ कि अब भी मुझे बहुत सही टाइम पे एटमी मिली। और ये जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो, ये केवल है बिलीव योरसेल्फ। मैंने खुद पे भरोसा करा। खुद पे जब आप भरोसा करते हो तो आपका व्यक्तित्व चेंज होता है, और उसके बाद आपको एक्शन लेना होता है। मैंने अपनी जिंदगी में वो करा दोस्त, ठीक है। मैंने हार नहीं मानी, कितना भी कुछ टफ ड्यूटी आई, कुछ रहा, कैसे भी रहा, लेकिन मुझे ये पता था कि ये वो सिस्टम है जो तुझे कामयाब कर सकता है, अनुज शर्मा, और मैं लगा रहा। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। तो दोस्तों, एक स्लाइड आपके बड़े काम की हो सकती है, हो सकता है इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या आप अपने काम में सम्मिलित हैं या समर्पित हैं? क्या आप अपने काम में सम्मिलित हैं या समर्पित हैं? ये बड़ी अच्छी लाइन है, इसे समझो। तो कुछ लोग क्या है ना, बस चल रहे हैं, एटमी में आईडी लगा दी और बस चल रहे हैं। वो क्या है, सम्मिलित है। और सम्मिलित होने वालों का ना 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल भी कुछ नहीं होने वाला, यकीन मानिए मेरा। समर्पित है, अब समर्पित वर्ड पे आ जाते हैं। अब आप ये देखो कि जितने भी लोग आज जिंदगी में कामयाब हैं अपनी में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के महानायक, समर्पित है। वो कुछ भी करा, कैसे भी करा, छोटे पर्दे पे आए, बड़े पर्दे के नाकामयाब रहे, छोटे पर्दे पे आए, लेकिन क्या हुआ, समर्पित हैं, आखिरकार यहीं पे महानायक बने, राइट। उसके बाद में आप आज कितने बड़े एग्जाम्पल है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कितने बड़े एग्जाम्पल हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मतलब वो एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट खेल रहे हैं तो चलो क्रिकेट में नाकामयाब रहे तो आओ टेनिस बॉल खेलते हैं, राइट। एक्टिंग में नाकामयाब रहे तो चलो आओ क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग, आप ये फील करो कि आप आज ये फील करो और अपनी आई क्लोज करो, और ये आज रियल में आपको फील करना है कि आप अपने इस काम में जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप इस सेशन में हैं तो मैं आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा, क्योंकि आप वही डेडिकेट पर्सन हैं, आप फ्यूचर इंपीरियल मास्टर हैं जो आज अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव करने आए हैं। और आप आंखें बंद करके फील करो कि अभी तक आप एटमी में सम्मिलित हैं या समर्पित हैं। मैं समर्पित हूं, यस मुझे पता है, क्योंकि मैं अभी आपको प्रूव कर दूंगा कि मैं क्यों समर्पित हूं, राइट। तो आज अगर आप इस सेशन में भी समर्पित हैं, इस सेशन में भी समर्पित हैं, तो फिर से मुझे आपका एक यस चाहिए मुझे चैट बॉक्स में, और मैं देखना चाहूंगा। ललित सर वॉच करना, क्या सब लोग समर्पित हैं? और अगले 50 मिनट्स मैं आपको पूरा समर्पण से इस सेशन में देखना चाहता हूं दोस्तों, राइट।
नेक्स्ट एक स्लाइड है और आप मेरे दोनों फेस देख सकते हैं। और ये इसलिए नहीं मैं आपको अपनी कोई बहुत सारी चीजें की मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं या बहुत सारी चीजें कर रहा हूं, मैं अपने आप से आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं कि बहुत बड़े तीर मार लिए हैं, मेरे पास सब कुछ आ गया, लेकिन नहीं, मेरे पास सब कुछ आएगा ये मुझे बिलीव है, मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरे अपने आप पे है, मेरे मन पे है, मेरे हर चीज पे मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर लूंगा, 100% कर लूंगा। थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, लेकिन यस 100% मैं इसे करके हटूंगा। ये 2 फोटो आप देख सकते हैं, ये कब के हैं मैं आपको बता दूं, ये है कोरोना टाइम के। कोरोना जब हमारी कंपनी के लॉन्चिंग होने वाली थी तब, और एक लाइन लिखी हुई है, आपका शरीर कुछ भी कर सकता है, आपकी बॉडी कुछ भी कर सकती है, लेकिन समझाना मुश्किल है केवल दिमाग को। आपकी बॉडी ना दोस्तों, आपकी बॉडी कुछ भी कर सकती है, लेकिन समझाना किसे मुश्किल है, केवल और केवल दिमाग को। तो आपसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी आपको मुश्किलें आए, कभी भी आपको मुश्किलें आए तो आपको हारना नहीं है। मैं आपको रियल एग्जांपल देने वाला हूं। ये बात है जब हमारी कंपनी की शुरुआत होने वाली थी, और उस टाइम ये प्रीतपाल सर हैं, ललित सर हैं, कुछ लोग हैं मेरे साथ इस सेशन में जो गवाह इस चीज के। और मुझे उस टाइम ऑन ड्यूटी, मैं मथुरा 2-3 जगह ड्यूटी गया और मुझे कोरोना हो गया। उस टाइम कोरोना वालों को वो कार पकड़ने आया करती थी दोस्त, कार, आप समझ रहे हो, कार पकड़ने आती थी। और आप यकीन मानना कि वो मेरे लिए बहुत भयानक पल था, मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता बिल्कुल भी कि कितना मेरे लिए मुश्किल था वो। और उसके बाद मैं एडमिट रहा 21 दिन, और हमारी कंपनी के उस टाइम आधार कार्ड, पैन कार्ड की वेरिफिकेशन चल रही थी, लोगों से लगातार बात करनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि एक पहली पिक्चर आप देखते हो, सुना होगा कि राजा का सर कलम कर दो पूरी प्रजा बैठ जाती है। मैंने अपनी टीम तक से शेयर नहीं करा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं अगर अपनी पूरी टीम से शेयर करूंगा तो मुझे पता था ये ऐसा इनिशियल फेज है अनुज शर्मा, पूरी टीम यहाँ बैठ जाएगी। मैंने किसी से कुछ शेयर नहीं करा, अपने घर बताता तो बड़ी दिक्कत थी, और मैं ऑक्सीजन पे था, और उस ऑक्सीजन पे मैं लगातार लोगों से बात कर रहा था, उनका वेरिफिकेशन करा रहा था। प्रीत सर मुझे डेली शाम को वीडियो कॉल कर रहे हैं, सब ललित सर कर रहे हैं, ये सब चीजें हालचाल पूछ रहे हैं, लेकिन सब लोगों को नहीं पता था। उसके बाद डॉक्टर आता है और डेली मुझे ये बोलता है कि अगला नंबर, क्योंकि मेरी बेड के साइड से लेफ्ट से लोग मर रहे थे, इतना भयानक सीन था वो। और मुझे डॉक्टर बोलता है पर डे आके कि अब का नंबर इस इंसान का है, क्योंकि इसे कदर नहीं है कि इसको ऑक्सीजन लगी हुई है और ये मरेगा, 100% लिख के रख लो। और मैं ये सोचता था डॉक्टर तू क्या बोल रहा है कि मैं मरूंगा? मैं 100% साला इंपीरियल मास्टर बनने से तो पहले बिल्कुल नहीं मर सकता। ये बिलीव था मुझे अपने आप पे, ये भरोसा था मुझे खुद पे कि इंपीरियल मास्टर बनने से पहले अनुज शर्मा, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुझे इस दुनिया से लेके जाएगी। ये बिलीव था मुझे उस टाइम, वहां पड़े भी, और मैंने ऑक्सीजन हटा के अपने लोगों से बात करी, यस। और ये कॉन्फिडेंस था कि मुझे मेरे लोगों का वेरिफिकेशन कराना है। एटमी में उनकी आईडी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इस बिजनेस को, इसकी बिजनेस की वैल्यू समझ में आ सकी थी, और मुझे खुद पे भरोसा था। राइट, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से कह रहा हूं आप डॉक्टर की बात मानना बंद कर दो, लेकिन हाँ खुद पे जरूर भरोसा रखो। राइट, अब एक फोटो बड़ा शानदार आपके सामने है, नो पेन नो गेन, मोर पेन मोर गेन। ये एक फोटो है मेरा, और ये अभी जो सर्दियां गई हैं उससे उसी टाइम स्टार्टिंग का फोटो है। मैं 8 दिन बीमार था, और इंजेक्शन मुझे लगातार लग रहे थे मेरी बॉडी में, लगातार 8 दिन। और मेरी हालत ऐसी हो गई थी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं बता नहीं सकता। ऐसा नहीं था कि मैं छुट्टी नहीं ले सकता था, मैं ले सकता था। ऐसा नहीं था कि मैं बोल के मेरे सर से मैं वापस नहीं जा सकता था, मैं जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? मुझे लगा कि मेरा एक दिन भी खराब होगा अनुज शर्मा तो हो सकता है तेरा सेमिनार मिस हो जाए। हमने एटमी को दोस्त ऐसे नहीं जिया, हमने ना, आप हमारा ये काट भी दोगे ना तो हो सकता है ब्लड ब्लू निकल जाए। यकीन मानना, हमने जिया एटमी को पूरी शिद्दत के साथ, और मैं पूरे दिन दर्द में बिलखता रहा 8 दिन, लेकिन मैंने छुट्टी नाम की चीज नहीं ली, एहसास नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि मुझे एटमी के लिए काम करना था। मैं थोड़ा सा भावुक पर्सनैलिटी हूं और होती हैं चीजें, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप छोटी छोटी चीजों को लेके, बुखार हो गया मीटिंग में नहीं आएंगे, हैं, कुछ चीजें हो गई और बड़ा सेमिनार मिस कर देंगे। यार ऐसे जिंदगी नहीं बदलती दोस्त,
जिंदगी तब बदलती है जब आप अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंट काम करना नहीं है, इंपॉर्टेंट है रोजाना काम करना। कुछ लोग ना, मैं देखता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग दिखाने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग एक दिन में बड़े तीर मारना चाहेंगे, हमने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ मेरे अपलाइन मौजूद हैं और ये बात है मेरे हिसाब से फरवरी की नहीं होंगी, जब मैंने उनसे बोला था फोन करके, कंपनी जब स्टार्ट होने से पहले 1 साल पहले, कि कुछ टाइम 3-4 महीने मैंने लिए और फिर उसके बाद में मैंने उनसे एक फोन करके ये बोला था कि सर आज के बाद अनुज शर्मा जब पीछे मुड़ के देखेगा, जिस दिन इंपीरियल मास्टर हो जाएगा उस दिन तक लगातार काम करूंगा। और यकीन मानना, एक दिन की छुट्टी नहीं है, सिंगल डे ड्यूटी करी हो, कहीं भी रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने एटमी के लिए जरूर काम करा है। कुछ भी करा लेकिन मैंने एटमी को वक्त दिया है दोस्त, हर दिन वक्त दिया है। और आज 3 साल से ऊपर मुझे 3 साल लगभग हुए मुझे काम करते हुए। मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, मैं भगवान को हाजिर नाजिर मान के बात कहता हूं कि मैंने एक दिन सिंगल ऐसा नहीं है जिस दिन एटमी के लिए काम ना करा हो। चाहे मेरी ड्यूटी रात की थी तो दिन में काम करा, दिन की थी तो रात में काम करा, बीमार था तो बेड पे लौट के काम करा, घर था तो बच्चों को अलग करके काम करा। क्यों करा? क्योंकि मुझे पता है यही वो प्लेटफॉर्म है जो हम सबकी जिंदगी बदल सकता है, राइट। अब बहुत सारे इशू, ये एक स्लाइड आप इसे ना स्क्रीनशॉट ले लो। पार्ट टाइम फुल टाइम, पार्ट टाइम फुल टाइम। आप लोग ना जाके क्या बोलते हो, मैं तो पार्ट टाइम एटमी करता हूं, मैं तो पार्ट टाइम एमएलएम इंडस्ट्री करता हूं। भाई कोई पति बोलता है कि मैं पार्ट टाइम पति हूं? बताओ मुझे, कोई बोलता हो? आप चैट बॉक्स में आओ जरा, कोई बोलता है कि मैं पार्ट टाइम पति हूं? कोई बोलता है कि मैं पार्ट टाइम पिता हूं? कोई बोलता है कि मैं पार्ट टाइम बेटा हूं? कोई ऐसा बोलता है क्या? ऐसा नहीं बोलता होगा, क्योंकि पार्ट टाइम कुछ होता ही नहीं है यार। आप ना किसी के पास भी जाओ, ये पार्ट टाइम वाला ना अपने दिमाग से हटा दो, इस ना पार्ट टाइम को खत्म कर दो। यकीन मानना, आज हम लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बड़ा प्रमोशन कर लिया, लेकिन ये है कि करेंगे। आज मर्सिडीज नहीं है, लेकिन 100% हम उस प्रोसेस पे हैं कि हम लेंगे। आज हमारे पास बड़े बंगले नहीं है, लेकिन हम उस प्रोसेस पे हैं कि हम खरीदेंगे, क्योंकि हम एक लाजवाब, एक शानदार सिस्टम में हैं और हम उतना काम करते हैं जितना एक फुल टाइमर नहीं करता होगा। ये श्योरिटी है, आपको मैं गिनवा सकता हूं। किसी को भी शक हो तो मेरा नंबर ले लेना और मुझसे पूछ लेना कि मैं फुल टाइमर से ज्यादा काम करने, ऐसा नहीं है कि मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं, बहुत सारे लोग तो मुझसे बहुत आगे हैं, बहुत एडवांस कर, लेकिन जो फुल टाइम का रोनर होते हैं ना, उनसे ज्यादा मुझे लगता है कभी कभी मैं काम करता हूं। कुछ लोगों का ज्वाइन कराया, घर से काम शुरू करूं, घर से बाहर जाके शुरू करूं, रिश्तेदारों के साथ शुरू करूं, दोस्तों के साथ काम शुरू करूं। भाई तू लकीर तो खींच, तो शुरू तो कर मेरे भाई, तू कहीं से तो शुरू कर, तू घर से ही कर, तू बाहर जाके कर, रिश्तेदारों से कर, दोस्त कहीं तो शुरू कर, एक कदम तो रख। वो जो 100वीं सीढ़ी ऐसी नहीं मिलेगी तुझे, एक कदम रखना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए ये स्लाइड बनाई, भाई तू शुरू तो कर, एक कदम तो बढ़ा। अब एक रियल स्टोरी आ जाओ ऑफ माय फ्रेंड सलीम। समय बहुत कम है, मुझे लगता है कि कहीं मैं ज्यादा ही ना ले लूं मैं, लेकिन इसे बहुत जल्दी निपटाऊंगा। वही मैं इंटरेक्ट करने वाला था, थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, क्योंकि समय एक्चुअली सर, क्योंकि पहले 10-15 मिनट तो आपको पता ही है इंट्रोड्यूस करने में ही लगे। ओके, खैर मैं जल्दी सेशन को, अपनी स्लाइड को एंड करूंगा, राइट। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अगर बोर तो नहीं हो रहे, ऐसा तो नहीं हो रहा कि नो सर ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और लगातार मैसेज आ रहे हैं, सभी लोग बहुत ही इत्मीनान से फॉलो कर रहे हैं। कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। और रियल स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड सलीम, हालांकि 10 मिनट की 1 से 2 मिनट में कवर करूंगा। आपने आज तक बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, इसकी उसकी, लेकिन आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। और ये मेरा दोस्त है और मैं इसके बराबर में खड़ा हूं। अभी मेरी एक मेले में मुलाकात हुई, इसकी प्रॉपर वीडियो मेरे पास है, किस दिन आप सबको शेयर करूंगा। सन 2005-6 में हमने पुलिस में एक साथ भर्ती देखी। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में
क्लिक हो गया, ये बेचारा रह गया। उसके बाद इस बंदे ने घर से, इसकी हालत बहुत कमजोर, पिता इसके कारपेंटर, घर में 2-3 बहन बड़ी और इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी, और इसके पापा बहुत बुजुर्ग, कुछ ज्यादा कर नहीं पाते थे, और इसने रूम ले रखा था। पहले मैं भी रूम लेके स्टडी करता था। और उसके बाद क्या हुआ कि ये बेचारा नहीं सेलेक्ट हुआ, बहुत मायूस हुआ। मैं ड्यूटी पर जा चुका था, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। फिर 2007-8 की वैकेंसी में भी ये सेलेक्ट नहीं हुआ। मैं जाके बोला, मैं 8 में मिला इससे, ट्रेनिंग फिनिश हो गई थी सब। मैंने कि सलीम थोड़ा कुछ काम कर ले यार, और कुछ कर ले मेरे भाई, दिक्कत है, घर में प्रॉब्लम है, कैसे होगा सब कुछ। तो बोला भाई मैं कर रहा हूँ, मुझे मेहनत करनी है, मुझे पुलिस की कैप पहननी है, मुझे इंडिया पुलिस को रिप्रेजेंट करना हर हाल में, तुम भाई मुझे लगा रहने दे। और बहुत पतला हो गया था, अभी तो बहुत मोटा हो गया है, अभी तो मतलब सही दिखने लगा है। उसके बाद ये बंदा 2009 में भी नहीं हुआ, 2010 में भी नहीं हुआ। मेरे भर्ती होने के बाद ना उसके 4 साल तक भी 2010 तक भर्ती नहीं हुआ। मैं फिर मिला, सलीम क्या कर रहा है? बोला भाई अखबार बेच रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, घर का खर्चा भी चला रहा हूँ, पूरे दिन मेहनत मजदूरी भी करता हूँ, और इतना सूख गया लड़का। और उसके बाद मैंने कि तू, बोला पुलिस अब भी चाहिए मेरे भाई अनुज, छोड़ूंगा नहीं, ये कैप चाहिए मुझे, मुझे जाना है किसी भी तरीके से भर्ती हो। मैं कह रहा भाई कैसा जुनून है इस बंदे का। उसके बाद सन 2011, सन 2012 नहीं हुआ बंदा भर्ती। सन 2006 से लगा लो 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं हुआ ये भर्ती, राइट। उसके बाद क्या हुआ, इसकी ओवर एज हो गई। ओवर एज मतलब एज निकल गई। मैंने कि सलीम, मैं फिर आया, मैंने कि अब क्या करेगा? बोला मेरे दोस्त मैं हार नहीं मानूंगा बिल्कुल भी, किसी सूरत में भी हाई स्कूल दोबारा करूंगा, हाई स्कूल दोबारा करूंगा, फिर फॉर्म डालूंगा। इसने बंदे ने फिर 2012 में हाई स्कूल करी, फिर फॉर्म डाला। फिर ये 13 में ट्राई करा, 13 में भी नहीं हुआ, 14 में भी नहीं हुआ, 15 में भी नहीं हुआ। मैंने बोला भाई सलीम क्या इरादा है, क्या करने का इरादा है? बोला अनुज शर्मा डिमोटिवेट मत कर, मुझे किसी भी हाल में पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और 2016 में फिर वैकेंसी आई, और 2016 में फाइनली एक सेकंड मेरे, ये सन 2016 में ज्वाइन कर गया। और मैंने इससे एक चीज पूछी, अभी जब मुझे मेले में मिला, तो मेले में मुझे मिला तो ज्वाइन करने के बाद मैंने इससे एक ही चीज पूछी कि भाई तू ये बता तू अब क्या फील करता है? बोला मैं ये फील करता हूं कि अगर तू मुझे जीरो पे भी कोई छोड़ दे, आज मेरी नौकरी ले ले, कुछ ले ले, सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन मैं फिर भी खड़ा होकर दिखा दूंगा, जीरो से हीरो बनकर दिखा दूंगा। ये मैंने इस 10 साल के स्ट्रगल में फेस करा। तो ये रियल स्टोरी थी, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता पाया आप सभी को। अब नेक्स्ट मैं लेके चलता हूं आपको। अनुज सर वॉइस नहीं आ रहा है आपका। आई होप आप सबको अभी तक का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत शानदार लगा होगा। और मैं तो एक बात ही कहूंगा कि एहसास सच्चे हों, बस इतना ही काफी है, वरना सच तो लोग यकीन तो सच पर भी नहीं करते, राइट। तो बहुत ही शानदार सर का प्रेजेंटेशन रहा। अनुज सर आर यू देयर? मेरा वॉइस आ रहा है आपको? यस सर, क्लियर है, थोड़ा सा इशू था। ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूं सर, एक सेकेंड। आप मुझे सर 1 मिनट शेयर स्क्रीन का मौका दे दें बस। यस सर, योर स्क्रीन इज क्लियर, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, मैं बहुत जल्दी से क्लियर कर रहा हूं। यस, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हर आदमी में कुछ ऐसा है जिससे की जिंदगी बदल दूसरों की जिंदगी सकता है। बहुत जल्दी से आप समझे पावर ऑफ बिलीव।
महात्मा गांधी का फोटो दिखाई दे रहा है, राष्ट्रपिता हमारे। दोस्तों एक लाइन इनके लिए, मैं कुछ है मेरे पास में बहुत अच्छी पर्सनैलिटी यहाँ पर, चार तो मैं उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी को जो कुछ अंग्रेजों ने अगर ट्रेन से ना फेंका होता और उनकी बेइज्जती ना करी होती तो यकीन मानना, और उन्हें खुद पे बिलीव ना, भरोसा ना हुआ होता, तो आज हमें ना हमारे राष्ट्रपिता ना मिलते। वहीं भीमराव अंबेडकर को बचपन में दलित 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 करके दबाया ना होता, उनकी इंसल्ट ना करी होती, उनकी बेइज्जती ना करी होती, तो आज हमें संविधान के रचयिता ना मिलते। वहीं रतन टाटा जी को अगर किसी एक बाहर की कंपनी ने, कार बनाने वाली कंपनी ने बेइज्जत ना करा होता और उन्होंने सेल्फ बिलीव ना आया होता, तो आज रतन टाटा जो पूरी दुनिया में हमें गौरवान्वित कर रहा है वो आज हम देख ना पाते। और वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कुछ बताना चाहूंगा कि 1999 में जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान ऑन द टॉप बैठा हुआ था, पूछो उसने कवर कर लिया था सब कुछ, और स्टार्टिंग में हमारी हालत बहुत खराब थी क्योंकि वो टॉप पर थे, और उसके बाद यूएस से अमेरिका उन्हें अंदरूनी मदद कर रहा था टैंक से और मिसाइलों से। आप यकीन करोगे कि अंदर से मदद चल रही थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जब, क्योंकि हमारी हालत जब अच्छी हुई और हम युद्ध में आगे बढ़ने लगे, तो उस टाइम प्रेसिडेंट फोन करते हैं यूएसए के कि सर अटल बिहारी वाजपेयी जी, पाकिस्तान आप पे परमाणु बम का हमला करने वाला है। तो आप ये लाइन सुनिए और अपनी जिंदगी में नोट करिए कि खुद पर भरोसा कितना बड़ा होता है कि मिस्टर यूएसए प्रेसिडेंट, मैं भारत का 25% हिस्सा गंवाने के लिए तैयार हूं, मैं भारत का 25% हिस्सा गंवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। और उसके बाद अमेरिका तक घबरा गया था और पाकिस्तान वो बहुत बुरी तरीके से युद्ध हारा। मैं यहाँ किसी कंट्री को लेके वो बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमें ये याद होना चाहिए कि ऐसे भी हमारे प्रधानमंत्री थे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सीधा चैलेंज करा युद्ध के टाइम पे, और हम वो युद्ध बहुत अच्छी स्थिति में जीते। आई एम ए सोल्जर, मेरे अंदर वो ब्लड है, मेरे अंदर मेरी जो है ना नसें, उनमें वो एक सोल्जर का ब्लड भी बहता है। यकीन मानना दोस्तों, मेरे भी रोंगटे खड़े होते हैं एक दिन इनकी आप पूरी हिस्ट्री सुनना। इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो वो सोच सकता है, राइट। हम उड़ नहीं सकते थे लेकिन हमने एरोप्लेन बनाए। हम मछली जैसा गहराइयों में जाके बहुत तैर नहीं सकते थे, हमने पनडुब्बियां बनाई। हम बाज जैसा बहुत दूर तक देख नहीं सकते थे, हमने दूरबीन बनाई जो बहुत दूर तक देख सकती थी। दोस्त, हम चीते जितना तेज दौड़ नहीं सकते थे, हमने तेज दौड़ने वाली गाड़ियां बनाई। हम चांद पर पहुंच गए और हम मार्स तक पे उतर गए। दोस्त, यकीन मानना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जो लोग रोना रोते हैं ना, जो लोग रोना रोते हैं कि नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, ये रोना बंद कर दो। जब 5 करोड़ के बंगले से निकल के और अपनी 1 करोड़ की गाड़ी में बैठोगे ना, जब 5 करोड़ के बंगले से निकल के और अपनी 1 करोड़ की गाड़ी में बैठोगे, तो यकीन मानना आपसे कोई नहीं पूछने वाला आपके पास क्या था और क्या नहीं था, आप किस कास्ट के हो, आप काले हो या गोरे हो, आपसे कोई नहीं पूछने वाला। मेरे दोस्त, आप जिस हाल में हैं, जिस सिचुएशन में है, वहां से शुरू करो। और आपको मैं एक चीज बताता हूं, बहुत सारे लोग ना, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, 2 महीने काम करेंगे, सर मजा नहीं आ रहा, 5 महीने काम करेंगे, सर मजा नहीं आ रहा, 1 साल काम करेंगे, सर मजा नहीं आ रहा। भाई तू कौन सा यहाँ पे मूवी चल रही है क्या? गोलमाल रिटर्न चल रही है क्या? क्या चल रही है यहाँ? मूवी चल रही है क्या कोई कि तुझे मजा नहीं आ रहा? भाई एफर्ट में कभी किसी को मजा नहीं आता। वो क्या सोचता, भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच था और विराट कोहली खेल लेते, सोच रहे हो उस टाइम मजा आ रहा होगा? विराट कोहली सोच रहे थे कैसे जीत जाए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान गाली देगा। सचिन तेंदुलकर को मजा आता होगा, 4 बजे उठ के बैटिंग कर रहा है, हाथ से ब्लड निकल रहा है। ग्राहम बेल को फोन का आविष्कार करते हुए मजा आया था क्या? अपने जो राइट बंधु है उन्हें एरोप्लेन का आविष्कार करते हुए क्या मजा आया होगा? दोस्त, एफर्ट में कभी मजा नहीं आता, रिजल्ट मजा देते हैं जब आप किसी चीज को सक्सेस कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं और लोग आपके लिए क्लैपिंग करते हैं, राइट। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, आप सभी खुशनसीब हैं, थैंक्स बोल सकते हैं इलाइट ग्रुप का। और इलाइट ग्रुप के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो सीनियर्स ने ये इतना शानदार सिस्टम अपडेट करा है हम लोगों के लिए, इतना शानदार सिस्टम बनाया है, उसके लिए मैंने एक लाइन बनाई है कि हमारे पास तुक्का नहीं तरीका है, हमारे पास तुक्का नहीं तरीका है। और आज से जो हमारे सपने हैं वो हमारे सपने नहीं है, वो हमारा लक्ष्य है, वो एम है। मैंने 2023 से अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव करा दोस्त, वो
एक बड़ा बदलाव ये था कि मैंने अब सपने, लगता है सपने रात में देखे और भूल गया, मुझे मेरे अब सपने सपने नहीं लगते, मुझे मेरे सपने अब मैंने लक्ष्य बना लिए हैं कि मैं देर जरूर होगी, किसी भी हाल में रहेंगे, लेकिन हर हाल में उसे अचीव करेंगे। और दोस्त, हो सकता है कि 364 दिन आपका अच्छा ना गया हो सकता है 365वें दिन आपके साथ कुछ ऐसे शानदार लीडर ज्वाइन कर जाए कि आपका जो 364 दिन में आपने एफर्ट करा उसकी भरपाई कर दें। दोस्त, पासा उसी का पलटता है जो पासे फेंकता भी है, ये याद रखना, पासा उसी का पलटता है जो पासे फेंकता है। राइट, एटमी रन। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनियां तो चल रही हैं, नो डाउट, आज मार्केट में बहुत सारे सिस्टम रन कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पे दौड़ कौन रहा है? और दौड़ रही है दोस्त एटमी, और एटमी दौड़ रही है, तो यू आर वेरी लकी कि आप एटमी के साथ हो और आप क्लैपिंग कर सकते हो और अपने आप को गौरवान्वित फील कर सकते हो कि यस वी आर एटोमियंस। और दोस्त, मैं आपको ये कहना चाहूंगा लास्ट में, क्योंकि मेरी स्लाइड खत्म हो चुकी है, मेरा टाइम खत्म हो चुका है, कि ये अलग बात है कि मुकद्दर नहीं बदला अपना। मैं उन सभी लोगों के लिए लाइन बोलना चाहूंगा और अपने इस सेशन को लास्ट करना चाहूंगा। बात अलग है कि मुकद्दर नहीं बदला अपना, ये बात अलग है कि मुकद्दर नहीं बदला अपना, एक ही दर पर रहे, दर नहीं बदला अपना। और दोस्त, मेहनत का खेल है, मेहनत का खेल है, कोई शतरंज नहीं, मेहनत का खेल है, कोई शतरंज नहीं। देर जरूर है पर घर नहीं बदला अपना। जिएंगे मरेंगे एटमी के साथ और चलेंगे और यहीं पे सक्सेस लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ये साथ निभाने के लिए। थैंक यू सो मच अनुज सर, वंडरफुल, सुपर से ऊपर, ग्रेट, शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। आई होप आप सभी को मजा आया होगा और कमेंट से पता चलता है कि एनर्जी क्या है। आज एक अलग ही ऑरा बना हुआ है इस सेशन में, और लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी 496 पार्टिसिपेंट हैं। अभी तक अगर आपने अर्जुन को सुना है तो श्री कृष्ण को सुनना बाकी है। और एक बहुत ही जबरदस्त स्पीकर आज हमारे साथ हैं, जो कि बाय प्रोफेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो एक बहुत बड़ा लेवल, जो हम लोगों के लिए ड्रीम लेवल होता है, वो अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। अनुसर, अपना एक बार पीपीटी आप हटा दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो आप सभी ने देखा क्या शानदार सेशन अभी तक का रहा, लेकिन अभी आप आधी जर्नी में पहुंचे हैं, मंजिल तक पहुंचना बाकी है। क्योंकि अभी जहां तक हम चले हैं, हमें आगे का रास्ता उसके बाद ही दिखाई देगा। और आज बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है। जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, मैं उनको इन्वाइट करने से पहले उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सारे माइलस्टोन, बड़े से बड़ा लेवल अचीव कर चुके हैं। 2005 में उनकी डायरेक्ट सेलिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। 2013 तक उन्होंने वो सब सुख भोगे हैं इस इंडस्ट्री के जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसके बाद क्यों क्विट किया वो आपको खुद बताएंगे। और उनके लिए मैं 2 लाइनों के ये साथ उनका स्वागत करना चाहूंगा कि निगाहों में मंजिल थी, गिरकर भी संभलते रहे, हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। नाम है सतीश पाल जी और ईसीएल लीडर हैं रुड़की अचीवर सेंटर के। मेरी वॉइस अगर सतीश सर तक पहुंच रही है तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस बेहतरीन तालियों के साथ सतीश सर का स्वागत कीजिए। स्टेज इज योर सतीश सर। Thank you so much sir, thank you very much। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर जो कि आपका अभी तक सेशन, हेलो जी ललित सर, जो ललित सर ने मेरे बारे में बताया, रियल में सर मैं बता दूं काफी कुछ ज्यादा सर ने बताया, बट मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, और उससे पहले मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा एलीट ग्रुप का, कि एलीट ग्रुप ने वो काम करके दिखाया है जिस प्रकार से 1857 की जब क्रांति स्टार्ट हुई थी और कुछ लीडर्स ने बढ़ चढ़ करके उस क्रांति में हिस्सा लिया, तो क्रांति सफल नहीं हो पाई। लेकिन उसके 90 साल बाद जब दोबारा फिर क्रांति एक लीडरशिप के अंतर्गत सब लोग इकट्ठे हो गए, यूनाइटेड हो गए, एनर्जी को सिनर्जी एक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका रिजल्ट हमारे पास में है और ये उसी का परिणाम है कि एलीट ग्रुप बना। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एलीट ग्रुप के जितने भी कोर मेंबर्स हैं, स्पेशली जो हमारी टॉप मोस्ट अपलाइन संजय मेश्राम सर, टीएन साउस्कर सर, दिनेश कावड़ेकर सर
और प्रतिपाल सर, आप सभी लोगों ने मिल करके एक ऐसा मंच सभी लोगों के लिए तैयार किया है कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको पर डे के हिसाब से जो नॉलेज यहाँ पर मिल रही है, जो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, रितेश रंगारे जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इस एलीट ग्रुप को बनाने में। और आप लोगों ने आज मुझे चांस दिया इस ग्रुप के माध्यम से कि मैं आज लोगों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराऊं और बताऊं कि वास्तविकता में फेथ की पावर क्या है। मैं एक स्लाइड के माध्यम, स्लाइड ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है। ललित सर, आई एम ऑडिबल? यस सर, यस सर, वॉइस इज क्लियर, स्लाइड इज परफेक्ट। यस सर, परफेक्ट। स्लाइड मेरी विजिबल है सर? यस सर, Yes, yes, please. ओके 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 ओके। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद माय फर्स्ट स्लाइड। ओके, वेलकम ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ एटमी इंडिया एलीट ग्रुप। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं सभी लोगों का। और जो अभी मैं भीड़ देख रहा हूं, अभी 496 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे लोग अपने लाइफ में चेंज देखना चाहते हैं, अपने लाइफ में वो अचीवमेंट लेना चाहते हैं जिस अचीवमेंट को उन्होंने सोच करके एटमी को स्टार्ट किया। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों का जो आज का टॉपिक है, इनफैक्ट जो हम लोगों ने चूज किया, विश्वास। विश्वास होता क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस कंपनी के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर जब कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग कुछ दिनों के अंदर बहुत एनर्जी उसके पास होती है, लेकिन जब से 2 से 3 महीने बाद स्टार्टिंग करने के बाद में वो देखता है कि जिस बातों से उसने स्टार्ट किया था, जो सोच करके उसने स्टार्ट किया था, जो वो अचीवमेंट लेना चाहता था, वो अचीवमेंट उस प्रकार से उसके पास नहीं आ रहा है। इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए बहुत ज्यादा आपको अलग से रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं होती। मुझे जो लगता है लगभग 3 कॉमन ऐसी बात है हर किसी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, और जो जरूरी भी है उन्हें फॉलो करना चाहिए। अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होना है तो सबसे पहले आपके अंदर एक बात होनी चाहिए कि कम से कम आपके पास कुछ अपने ड्रीम होने चाहिए। कम से कम आपके पास अपने कुछ ड्रीम्स होने चाहिए, और उन ड्रीम्स को करने के लिए आपके पास एक सॉलिड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। दूसरी बात कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने अंदर कुछ चेंज करने के लिए हमेशा तैयार रहे, सीखने के लिए तैयार रहे। क्योंकि सबसे बड़ा एक जो चैलेंज आता है, कोई व्यक्ति पाना सब कुछ चाहता है, सीखना कुछ नहीं चाहता। सीखना कहां से पड़ेगा? जो भी इवेंट्स होंगे उन इवेंट्स को आपको अटेंड करना पड़ेगा। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आती है यहाँ पे, आप अपने आप को रेडी करके रखे, तैयार करके रखे। घर बैठ करके आपका बिजनेस होने वाला नहीं है, आप तैयार करके रख रहे। कुछ महीनों से लेकर के कुछ सालों तक आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप हार्डवर्क और मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो आपका जो इंपीरियल मास्टर बनने का जो सपना है वो एक सपना ही रह जाएगा। पर स्टार्टिंग में जब कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है, बहुत बड़ा ड्रीमर भी नहीं होता, उसे बहुत बड़ा विजन भी नहीं दिखता। कहीं इस प्रकार से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको रुड़की से दिल्ली कभी नहीं दिखेगा। अगर आपको दिल्ली जाना है और आप देखो, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग जो होता है उसका आई साइट कहाँ तक देख सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 किलोमीटर तक विजन होता है उसका। बट अगर आपको दिल्ली जाना है रुड़की से, आपको पहले कुछ स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे, फिर उससे आगे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप कहीं भी निकले, दिन में निकले चाहे रात को निकले, पहले कुछ स्टेप्स को आप चले। आप अपने घर से निकले, और जैसे आप घर से निकलेंगे तो आपको थोड़ा और रास्ता आगे दिखाई देगा, 3-4 किलोमीटर का, फिर 3-4 किलोमीटर, फिर 3-4 किलोमीटर का। इसका मतलब ठीक वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता है। जब आप शुरुआत कर देते हैं तो आपको कुछ हर्डल्स जरूर आएंगे, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस एफर्ट करते चले जाएंगे तो आप उनसे ओवरकम भी पा लेंगे। क्योंकि मेरा अपना ऐसा एक्सपीरियंस है, इस इंडस्ट्री में फेलियर्स होने वाले लोगों का एक ऐसा आंकड़ा मेरे पास में है, वो अधिकतर लोग इस इंडस्ट्री में बिना कुछ हार्डवर्क किए, बिना कुछ एफर्ट किए इस बिजनेस और इस इंडस्ट्री को क्विट कर जाते हैं। पर मेरे हिसाब से कम आपको इस इंडस्ट्री को 1 साल तो जरूर देना चाहिए, कम से कम 1 साल जरूर देना चाहिए। और जब आप 1 साल इस इंडस्ट्री को दे देंगे तब आपको 1 साल के बाद आपको महसूस होगा कि मेरे ऊपर तो स्पेशल भगवान की मेहर है कि मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। पर ये सब कुछ कैसे होता है माय डियर फ्रेंड्स? ये होता है हमारे विश्वास से। टॉपिक है हमारा विश्वास, और विश्वास भी किस प्रकार से? अनशेकेबल फेथ। मतलब क्या है? अटूट विश्वास। किसके ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए? क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स पे बात करने वाला हूँ, टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला जो फेथ है, इसके ऊपर एक मैंने क्विटेशन लिखी, आर फेथ कैन मूव माउंटेन एंड आर डाउट कैन क्रिएट देम। मतलब बिल्कुल सीधा सीधा सा है, अगर हमारा विश्वास एक पहाड़ को भी हटा सकता है,
और हमारे अंदर अगर कोई डाउट आ गया है, सब कुछ अगर हमारे पास भी हो, तब भी हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। इस इंडस्ट्री की सच्चाई है। अब डाउट कहाँ पे आते हैं? हमने चलना स्टार्ट किया, शुरुआत की, बहुत सारे डाउट्स हमारे पास, ऑब्स्टेकल्स आते हैं और उन डाउट में कभी कभी हम उलझ जाते हैं और उलझ करके हम बड़े अचीवमेंट्स को ले नहीं पाते। मैं नेक्स्ट अगर इस स्लाइड की बात करें, टू बी सक्सेसफुल इन एटमी, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अगर आपको सक्सेसफुल होना है एटमी के अंदर, तो हमें दो प्रकार के फोर्सेस है, दो प्रकार की पावर्स है, जो पावर्स हमेशा हमें साथ देगी। वो दो कौन कौन सी पावर्स है, उन पावर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो पावर है, फेथ ऑन आउटसाइड फोर्सेस, हमारा विश्वास, जो बाहर का जो फोर्सेज हमारे ऊपर लगने वाले, उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। दूसरा हमारे पास होता है एक इनसाइड फोर्स, जिसके ऊपर हमारा बिलीफ होना चाहिए। पहला फेथ आउटसाइड फोर्सेज, दूसरा फेथ हमारे इनसाइड फोर्सेज। अब ये है क्या, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, बता दूं आपको आउटसाइड फोर्सेज में क्या क्या आते हैं। अब आउटसाइड फोर्सेज में अगर हम लोग स्टडी करें, हमारे पास अलग अलग तरीके आउटसाइड फोर्सेज है। सबसे पहला जो आउटसाइड फोर्स है हमारे पास में, फेथ ऑन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं आपको बता दूं, आपका विश्वास ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और आपको कोई भी व्यक्ति लाकर खड़ा कर दे कि ठीक है अब आप आए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बहुत सारे लोगों ने सपने पूरे किए, आप भी सपने पूरा कर लेंगे, और आपसे कहे लेकिन आपका इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है ठीक उस प्रकार से जैसे आप एक घोड़े को जबरदस्ती ला करके नदी किनारे तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसे आप कोई पानी नहीं पिला सकते। एक व्यक्ति को आप इस इंडस्ट्री में ला तो सकते हैं, पर उसे अचीवर नहीं बना सकते। एक व्यक्ति को आप जबरदस्ती जोड़ तो सकते हैं, प्रोडक्ट तो खरीदवा सकते हो, पर उसे आप रियल कंज्यूमर नहीं बना सकते। एक व्यक्ति को आप जबरदस्ती करके अचीवर तो बना सकते हो, लेकिन एक सक्सेसफुल लीडर नहीं बना सकते। तब तक नहीं बना सकते जब तक उसका खुद का अपने ऊपर फेथ ना हो और खुद करना ना चाहे। तो पहला फोर्स कौन सा लगता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे, माय डियर फ्रेंड्स? अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, से एक्सप्लेनेशन करने का समय बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी कुछ पॉइंट्स की मैं बात बता दूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे पहले बताते हैं कि जैसे आप इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो भी आप काम करें उस काम के साथ साथ में आपको एक पार्ट टाइम काम करने का मौका मिल जाएगा। आप पार्ट टाइम कुछ सोर्स ऑफ इनकम, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप अपने को ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो आप ड्रीम को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ सकते हैं। अगर आपको लिबर्टी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं जॉब सीकर ना बनूं, जॉब क्रिएटर बनूं, तो आपको माय डियर फ्रेंड्स मेरा सजेशन है, आपको जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जरूर करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं मुझे बहुत सारे लोगों के लिए चैरिटी करनी है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप जॉब से कभी चैरिटी नहीं कर सकते। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है ना, ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोगों की बात बता रहा हूँ, लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, अमीर बनने के लिए नहीं आते। अब दोबारा फिर सुनना मेरे इस स्टेटमेंट को, अधिकतर लोग इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाने के लिए आते, अमीर बनने के लिए नहीं आते। वहां पर हमारा एटीट्यूड सेट हो जाता है, चेंज होता है। जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाने के लिए आते, तो माय डियर फ्रेंड्स पैसा तो जॉब से भी लोग कमा रहे हैं, तो हम लोग जॉब की मेंटालिटी से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करना शुरू करते हैं। और जॉब में करता कौन है? कोई व्यक्ति जॉब में केवल उतना काम करता है जिस काम के करने से उसका मालिक उसे बाहर निकाल करके ना फेंक सके, और मालिक भी उसे इतना पे करेगा जितने पे करते रहने से उसकी नौकरी को छोड़ करके ना भागे। तो ये, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अगर आप अपना बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करनी चाहिए। और आप यहाँ पर अपने आप को अगर ज्वाइन करते हैं तो अमीर बनने के लिए करें, अमीर बनने के लिए। अब अमीर में क्या आ जाता है? अमीर में आप अपनी जॉब मेंटालिटी को छोड़ करके आप ओनरशिप पर आ जाते हैं, और जब आप ओनरशिप पे आते हैं तो आपको ये बिजनेस आपको आपके अपलाइन का भी नहीं लगेगा, ये आपको बिजनेस आपके अपलाइन का नहीं लगेगा, ये बिजनेस आपको अपनी टीम का नहीं लगेगा, बिजनेस आपको अपना लगना लगेगा। और जिस दिन से आपके बिजनेस आपको अपना लगेगा तो आप इस बिजनेस में अपने आवर्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप अपने घंटों कैलकुलेट नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे अपने अपलाइन से, मेरी अपलाइन मैंने आप 5 घंटे काम किया और मेरे काम करने मैंने 3 लाख का धंधा डाल दिया है, तेरे को पे आउट जाने वाला है, तेरा कंट्रीब्यूशन क्या है मेरे पे आउट को बनवाने के लिए? क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं वहां पे, हम क्वेश्चन खड़ा करेंगे। ये कब होगा? जब हमारा विश्वास इस इंडस्ट्री के ऊपर नहीं है, क्योंकि हम लोग आए पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए नहीं आए। माय डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल चुकी है। पिछले 70 सालों में 100 से ज्यादा देशों के अंदर, पिछले 70 सालों में 100 से ज्यादा देशों के अंदर लाखों करोड़ों की जिंदगी को इस इंडस्ट्री ने सफल किया है। जिंदगी आपको एक ही मिली है,
जिस ड्रीम को, सपने को आप पूरा करने में 30 से 35 साल लगा रहे हैं, जब उस ड्रीम को आप 4 से 5 साल में कड़ा मेहनत करके आप पूरा कर सकते हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते, आप इसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते, आप इसके ऊपर डाउट क्यों क्रिएट कर देते हैं? और जब डाउट आएगा तब आप इसे केवल और केवल पैसा कमाने की दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। तो आप इसे कभी भी पैसा कमाने की दृष्टि से नहीं, अमीर बनने की दृष्टि से देखें। जो अमीर बनने की दृष्टि से देखता है वो इंपेल मास्टर बनने के लिए से ज्वाइन करेगा। सेकंड में आपको बता दूं, हाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, एक्सप्लेन में पूरा नहीं कर सकता। सेकंड फेथ किस पर होना चाहिए? फेथ ऑन योर एक्टिव अपलाइन। आपको इस इंडस्ट्री में लाने वाला कोई भी हो सकता है, XYZ कोई व्यक्ति हो सकता है इस इंडस्ट्री में आपको लाने वाला। मैंने जैसे देखा, मेरा सेशन स्टार्ट हुआ उस समय 497 पीपल्स यहाँ पर अवेलेबल थे, लेकिन अब धीरे धीरे घटते 456 लोग हो चुके। ऐसे ही आपकी टीम के साथ भी होने वाला है। शुरुआत में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कुछ लोग की वैलिडिटी 1 साल की होगी, लेकिन वो छटनी होगी और होनी चाहिए, छटनी होनी चाहिए। क्योंकि अगर छटनी होगी, अगर ऐसा ना होता तो आज एटमी के अंदर 15-16 लोग इंपेल मास्टर ना होते। छटनी होगी, जैसे जैसे आप ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों की छटनी होती ही है। अगर मेरे यहाँ पर स्पीच देते देते लास्ट तक अगर 400 लोग बचते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि 400 लोग सारे ड्रीमर्स लोग हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सेकंड, फेथ ऑन योर एक्टिव अपलाइन। आपको इस इंडस्ट्री में कोई भी लेकर के आ सकता है, आप जाने अनजाने में आ सकते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर आप अचानक से आ जरूर सकते हैं, लेकिन आप सक्सेसफुल अचानक नहीं हो सकते। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको अपनी अपलाइन पे फेथ करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी आपकी अपलाइन जो एक्टिव अपलाइन है, जिसे आप मानते हो मेरी एक्टिव अपलाइन है, उस पर आप ब्लाइंड फेथ करें, अंधविश्वास करें। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अलावा और कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर आपकी अपलाइन आपके फादर से ज्यादा आपकी केयर करता है। एक आपका फादर आपको इतनी केयर नहीं करेगा, अगर एक सच्चे दिल से एक ईमानदार अपलाइन है, वो आपका हमेशा केयर करेगा, हमेशा चाहेगा कि उसके डाउनलाइन टीम में रेगुलर पे आउट बने, उसकी डाउनलाइन टीम में हमेशा लोग एक्टिवली काम करते चले, उसके डाउनलाइन टीम में हमेशा अचीवर्स बने। क्योंकि उसमें उसका प्रॉफिट तो है ही, पर सबसे बड़ा प्रॉफिट उसकी टीम का है। क्योंकि लोग अपनी जिंदगी में सफल होंगे तो ऑब्वियसली अपलाइन तो सफल हो ही जाएगी। और यहाँ सबसे बड़ी प्लस बात यही है कि जब हम अचीवर बनना शुरू हो जाते हैं, और अपना जो मार्केटिंग प्लान है इस प्रकार से डिजाइन किया है कंपनी ने कि आप अकेले चाह करके भी सफल नहीं हो सकते। आपको सफल होने के लिए अगर आपको इंपेल मास्टर जाना है तो कुछ लोगों को आपको क्राउन मास्टर तो बनाना पड़ेगा, चाहे आप जाने अनजाने में सही, चाहे अपने स्वार्थ की वजह से। लेकिन एक जो एक्टिव अपलाइन है वो किसी स्वार्थ की वजह से नहीं, वो इस बात के लिए करती है कि जब एक दिन मैं स्टेज पे जाकर के मेरी टीम का बंदा जाकर के धाड़ के कहे ना कि हाँ मुझे जोड़ा है इस बंदे ने, और मैं सैल्यूट करता हूँ इस अपलाइन को, किसी ने मेरी जिंदगी को चेंज करने के लिए, भगवान मेरा ये है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की वीडियो देखता हूँ, इस इंडस्ट्री के अंदर आपको वास्तविकता में सच्चा सम्मान मिलता है। यहाँ लोग सम्मान दिल से करते हैं, पर आप पहले एक एक्टिव अपलाइन बन करके दिखाए। क्योंकि एक्टिव अपलाइन बनना इतना आसान काम नहीं है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आपकी बीवी कहती है आप घर से मत निकलो, मुझे इवेंट अटेंड करना है, और आप कहते नहीं मेरी टीम का मेंबर मुझे मीटिंग के लिए बुला रहा है, मुझे वहां जाना है। आपको एक्टिव अपलाइन बनने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो उन सेक्रीफाइस को करते हुए अगर आपके पास एक एक्टिव अपलाइन है, और आपके पास एक्टिव अपलाइन है तो आपका पिता है, वो आपका फादर है, वो आपका गॉड फादर है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसके ऊपर आप ब्लाइंड फेथ करें। अगर जब अभी देखो विश्वास कैसा होता है, एक बार आपके अपलाइन ने आपकी हेल्प कर दी, और हेल्प करने के बाद आपको पूरा एफर्ट कर दिया, आप सेल्स मास्टर चले गए, अगली बार अपलाइन ने कहा कहने ठीक है एफर्ट लगा और थोड़ा दम लगा, और उसने कहीं दाएं बाएं देखना शुरू कर, तो अगली बार ऑब्लिगेशन खड़ा कर दिया अपलाइन के ऊपर, कहने अपलाइन स्वार्थी है, अपलाइन स्वार्थी है, क्योंकि हमारा फेथ है ही नहीं। लेकिन अगर आप सच्चे ईमानदार एक डायरेक्ट सेलर है तो आप हमेशा अपनी अपलाइन का सम्मान करें। नेक्स्ट फेथ किस बात को होना चाहिए? फेथ ऑन योर कंपनी। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको आज के टाइम में अगर फेथ की बात करें, एटमी अपने आप में अपने आप को प्रूव कर चुकी है, बारी हमारी और आपकी है। एटमी ने प्रूफ किया, किस प्रकार से प्रूफ किया? पिछले 13 साल में कंपनी का नाम मुझे बता दीजिए, एक कंपनी का नाम मुझे बता दीजिए जिसका टर्नओवर इतने सालों में इतना बड़ा हो। एक कंपनी का नाम बता दीजिए जिसके एक प्रोडक्ट का टर्नओवर 18,500 करोड़ से ऊपर का हो। एक कंपनी का नाम आप मुझे बता दीजिए जो ह्यूमैनिटी के लिए इतना बड़ा काम करे। एक कंपनी का नाम बता दीजिए, इंडिया के अंदर लाखों कंपनी चल रही है, एक कंपनी का नाम ऐसा बता दीजिए जो कंपनी चैरिटी करके 2 स्कूलों को ऑप्ट करके 80-80 लाख रुपया डोनेशन दे करके फ्री में गरीब लोगों को एजुकेशन दे। एक कंपनी का नाम बता दीजिए, एक कंपनी का नाम आप इंडिया के अंदर बता दीजिए जिसकी पेड अप कैपिटल 10.5 करोड़ हो, बता दीजिए आप मुझे कंपनी। और अगर इतनी बड़ी कंपनी के अंदर इतने बड़े प्रोडक्ट के साथ में अगर हम लोग काम नहीं कर पाते, सफल नहीं हो पाते, इसका मतलब हमें अपने ऊपर विश्वास है ही नहीं। इस इंडस्ट्री की बड़ी खासियत है,
वो लोग सफल होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और उनका है ना स्टार्टिंग के कुछ महीनों के अंदर दिख जाता है। जैसे कहते हैं ना कि पूत के पांव पावले में दिख जाते हैं। जो इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होने वाले लोग होते हैं, कुछ स्टार्टिंग के महीनों में अपना ओरा दिखाते हैं कि ये लोग, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता दूं मेरा विश्वास कैसा था। अभी कुछ स्टोरीज में अपने बारे में बिल्कुल शेयर नहीं किया, आगे मैं आपको थोड़ा सा जरूर शेयर करूंगा। बट अभी हम अगर एटमी के अंदर हैं, इस वजह से है क्योंकि हमारा एटमी के ऊपर अटूट विश्वास है। और मुझे लगता है 440 लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हर एक व्यक्ति का एटमी के ऊपर अटूट विश्वास है। अगर ऐसा है तो रियली में आप लोग आने वाले, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि समय लगेगा आपको अचीवर बनने में। नेक्स्ट विश्वास की बात करना चाहिए, फेथ ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस बात पे बिलीव होना चाहिए कि जो ट्रेनिंग सिस्टम है आपका, वो ट्रेनिंग सिस्टम आपके लिए कारगर साबित होगा। वो सिस्टम आपके लिए कारगर साबित होगा, वो सिस्टम आपको हेल्प करेगा। जैसे कंपनी अभी कुछ इवेंट्स करती है, कुछ कंडक्ट कराती है इवेंट्स को, और वहां पर आपको ट्रेनिंग मिलती है कि आप इस सिस्टम को, इस बिजनेस को कैसे सक्सेसफुली रन करा सकते हैं। तो हमारे कंपनी का डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, मैं तो हमेशा आपको एक बात कहता हूं अपने मीटिंग सेमिनार, जब भी कहीं बोलने का मौका मिलता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर हेनगिल पार्क जी जो कंपनी के ओनर है, आप उनकी कोई भी प्री रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते। अभी हमेशा इस बात को मैं कंपेयर करता हूं कि जो भी, मैं बहुत सारे जो कंपनी के ओनर्स हैं, इंडिया कंपनी के ओनर्स हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, देखता हूं उनका मेंटल लेवल और जो हमारे कंपनी के जो ओनर है उनका मेंटल लेवल, सर जमीन आसमान का फर्क है। उन दोनों के लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या थॉट प्रोसेस है एक इंसान का, क्या थॉट प्रोसेस है, मानवता के लिए करना चाहता है। और जब उनसे पूछा, मेरी अपलाइन ने मुझसे डिस्कस किया कि हम लोग अभी लास्ट ईयर नवंबर में जब हमने कंपनी को विजिट किया और किसी ने क्वेश्चन पूछा डॉक्टर हेनगिल पार्क जी से कि सर आपने एटमी इंडिया की स्थापना किस सोच विचार से की, तो उन्होंने कहा कि मैंने इंडिया के अंदर एटमी को इस सोच से नहीं किया कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुझे वहां से बहुत प्रॉफिट कमाना है। मैंने इंडिया के अंदर एटमी को इस वजह से स्टार्ट किया, मैं चाहता हूं कि लोगों का हेल्थ स्टैंडर्ड को इंप्रूव किया जाए और उनको वेल्थियर बना जाए। मुझे वहां से इनकम 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे वहां के बेटरमेंट के लिए, वहां की इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए मैंने इस कंपनी को इंडिया के अंदर स्टार्ट किया। तो थॉट प्रोसेस अलग ही लेवल का थॉट प्रोसेस है। और यहाँ चाहते कहले 2 साल तक कंपनी चलाओ और अपने अकाउंट में 1 करोड़ आए और कंपनी को बंद करके दूसरी कंपनी खोल करके बैठ जाए। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे झांसे में हमें नहीं फंसना। हमारे पास वेल प्रूवन ट्रेनिंग सिस्टम है, वेल प्रूवन कंपनी है। नेक्स्ट फेथ किस बात पे होना चाहिए? फेथ ऑन योर टीम। यस, अभी ठीक है अपलाइन के ऊपर फेथ होना चाहिए, लेकिन हमारे जब स्टार्टिंग टाइम होता है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, स्टार्टिंग टाइम होता है, समय होता है, अपलाइन साथ में खड़ी है, लेकिन अगर टीम में कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा है तो एक समय हो सकता है कि हम लोग एफर्ट करते रहे, कहीं ना कहीं फेथ हमारा डगमगा सकता है। लेकिन हमारी टीम हमेशा हमें मोटिवेट करती है कि जब हमारे स्टार्टिंग टाइम स्ट्रगल टाइम थे, हमारी टीम में कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, लेकिन उसी बीच में जब हम लोग प्रयास करते रहे, निरंतर एफर्ट करते रहे, तो कुछ जेम्स हमारी टीम में आते चले गए और वो हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं। अगर कभी हम लोग किसी बात को लेकर के थोड़ा अप एंड डाउन होता है और कॉल आती है, जब बात होती है, कहना सर क्या चल रहा है, कहना सर जबरदस्त चल रहा है, सब कुछ कुशल मंगल है, जबरदस्त सर, बहुत बड़ा करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक हमें फेथ क्रिएट होता है कि हाँ, मैं जिस टीम का हिस्सा हूं वो टीम बहुत सॉलिड है। लेकिन मैं आपको एक बात और यहाँ पे कह दीजिए, मैं आप कभी भी आप इस बात को सोच कर कभी गर्व महसूस ना करें कि मेरी टीम सबसे सॉलिड है, बल्कि आप इस बात का फक्र करें कि जिस टीम के पीछे मैं वो सॉलिड करने के लिए मैं पूरा अपना जान और सब कुछ लगा दूंगा उस सॉलिड बनाने के लिए। मेरा कंट्रीब्यूशन हमेशा मेरी टीम के ऊपर बढ़ाने के लिए होना चाहिए, तभी आपकी टीम आपके ऊपर फेथ करेगी। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर तब तक फेथ नहीं करता जब तक आप प्रूफ ना करें। माय डियर फ्रेंड्स, वो इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो, अगर आपने पीछे बहुत कुछ किया लेकिन आज आप परफॉर्मर नहीं करे, इसलिए अगर आपको अपनी टीम का विश्वास जीतना है तो आपको रेगुलर परफॉर्मर बनना ही पड़ेगा। पर डे आपको एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, अपनी टीम के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है कुछ आउटसाइड फोर्सेज, और ये आउटसाइड फोर्सेज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट फेथ की अगर बात आपको करूं, फेथ ऑन इनसाइड फोर्सेज। ये इनसाइड फोर्सेज क्या है हमारे पास? सबसे पहला फेथ ऑन योर सेल्फ। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब शुरुआती दौर में मैंने एटमी को स्टार्ट किया, मेरे कुछ लोग जो जानते थे, मुझसे परिचित थे, और कहीं मिलना जुलना बातें करना तो काफी इंप्रेस करने, सर आप काश अगर मेरी कंपनी में आ जाए ना तो बस चक दे फट्टे हो जाएगा, बहुत कुछ कर देंगे, आप इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा कर लेते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं लेकिन अभी एटमी को शिद्दत से कर रहा हूँ,
कहा सर एटमी तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई। मैं कहा नहीं होगी, मार्च में स्टार्ट होगी। मार्च चला गया, उसने कहा सर कंपनी स्टार्ट हुई क्या? मैं कहा नहीं, जून में स्टार्ट होगी। कहना चलो ठीक है सर, जून तक और इंतजार कर लेते हैं। देखा जून भी चला गया, स्टार्ट नहीं हुई। फिर एक और डेट आई, कहने जी अगस्त स्टार्ट हुई, अगस्त में स्टार्ट नहीं हुई। और लास्ट डेट आई, कहने जी हमारी कंपनी स्टार्ट होने वाली है नवंबर में। तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, कहने सर आपने कई बार मुझसे बोला कि आपकी कंपनी तब स्टार्ट हुई, तब स्टार्ट हुई, नहीं हुई। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर आपकी कंपनी अगर नवंबर में भी स्टार्ट नहीं हुई तो क्या होगा? मैंने पता है सर, मुझे पता है अगर नवंबर में कंपनी स्टार्ट नहीं हुई तो 90% लोग एटमी को छोड़ चुके होंगे। 90% लोग एटमी को छोड़ चुके होंगे, लेकिन उन 10% लोगों में सतीश कुमार शामिल होगा। उन 10% लोगों में खड़ा मिलूंगा, मैं छोड़े कहीं भागने वाला नहीं हूं। कंपनी अगर 2020 छोड़े 2021 में भी स्टार्ट नहीं होती तब भी मैं एटमी के साथ खड़ूं, मेरा विश्वास था। अब वो विश्वास किस वजह से आया, वो विश्वास किस वजह से आया उसका मैं आपको कारण बताता हूं। कारण क्या था, एक्चुअली जब मेरी अपलाइन जानती थी, मुझे काफी पुराने टाइम से जानती थी, उन्हें पता था कि 2000, अब मैं थोड़ा सा आपको एक पिक्चर क्लियर कर दूं कि मैंने इस इंडस्ट्री में 2005 में कदम रखा, और 2005 में जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा तब मैं न 3 में था न 13 में था, बस पीछे तालियां बजाई। फिर 2009 में मुझे दोबारा फिर इस इंडस्ट्री से रूबरू होना पड़ा, और जब मैं इस इंडस्ट्री से रूबरू हुआ उस समय मैंने बहुत हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ में सिस्टम को किया, और जो भी इस कंपनी के टॉप लेवल थे उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, उन सभी लेवल्स को मैंने बहुत कम टाइम के अंदर अचीव किया। और अचीव करने के बाद में जो किसी का ड्रीम हो सकता है एक इनकम का, 2010 में मेरे पास अपनी खुद की लग्जरी कार, और मैंने वादा किया था कि मैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद में मैं सबसे पहला अपनी यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट बनूंगा जो अपनी डिग्री खुद की लग्जरी कार में लेने के लिए जाएगा। और जुड़ने के मात्र 1 साल बाद में अपनी यूनिवर्सिटी का, पंतनगर यूनिवर्सिटी का पहला स्टूडेंट बना जो अपनी डिग्री खुद की लग्जरी कार में लेने के लिए गया था। ये पावर जो मिलती है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से मिलती है, और ये हमारे ऊपर फेथ क्रिएट करती है कि हम लोग इस इंडस्ट्री में अगर है हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरा अकेले का एफर्ट नहीं चलता, यहाँ पर एफर्ट चलता है पूरी टीम का। विश्वास, और किस बात के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए? फेथ ऑन योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। माय डियर फ्रेंड्स, अभी अगर आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे सफल होने के लिए सबसे बड़ा अटूट विश्वास आपको अपने ऊपर, क्योंकि होता क्या है, अगर हम लोग अपनी अपलाइन के भरोसे कुछ लेवल, 1-2 लेवल अगर हमने ले भी लिए तो वो सस्टेन नहीं रहेंगे, वो लेवल कुछ समय के बाद में हमारे पास से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा डेडिकेशन हार्डवर्क आप करने के लिए तैयार है तो यहाँ पे आपको सक्सेस होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो आपको बिलीव होना चाहिए अगर मैं हार्डवर्क करूँ, क्योंकि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। आप सब, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारे काम लगातार भी नहीं करने आपको। इस इंडस्ट्री की बड़ी अच्छी खासियत है कि कोई भी काम आपको लगातार नहीं करना है, केवल एक काम करना है स्पॉन्सरिंग के अलावा। जैसे आपको स्टार्टिंग में 1 बाय 1 जाकर के मार्केटिंग प्लान शो करते नहीं करते, लेकिन जब आप लोगों को डेवलप कर देते हैं तो आप एक जगह बैठते हैं, वहां पे लोग आकर के आपको सुनते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आप 100 लोगों की, 200 लोगों की, 300 लोगों की, 400 लोगों की, 500, 1000 लोग गैदरिंग में भी जाकर के इवेंट करेंगे, तो आपके जो फेजेस है, जो आपके लेवल्स है, हमेशा चेंज होंगे। बट आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा। आपको वो भी एक दौर आएगा कि आप लगातार 6 महीने अगर कोई इवेंट को अटेंड नहीं करेंगे तो आपकी इनकम कम नहीं होगी, लेकिन कम से कम ऐसा लेवल के लिए आपको 3 से 4 साल हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने आप को फील्ड में उतारना पड़ेगा। बहुत कठिन परिश्रम, अनकंडीशनल कंडीशन है, यहाँ पे कोई काम नहीं होता। ज्यादातर लोग इसमें असफल इस वजह से भी हुए क्योंकि ज्यादा सीखे हुए लोग हैं, वो इतना ज्यादा सीख चुके होते हैं, पहले से रेडी होकर के आते हैं कि हाँ हमें 1 लाख की सपोर्ट करो, 2 लाख की सपोर्ट करो, 3 लाख। अरे मैं आपको कहता हूँ कंडीशन जो व्यक्ति रखेगा इस इंडस्ट्री में वो बहुत मुश्किल से सफल होगा। एक व्यक्ति का मुझे नाम बता दो कि उसने अपनी कंडीशन से इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, कंपनी को स्टार्ट किया, सब कोई हो ही नहीं सकता। एक आध तो बाय लक के लिए कुछ हो सकता है, अदरवाइज नो वे, चांस ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, फेथ ऑन योर कमिटमेंट, आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा अपने अपलाइन को कि अगर मैंने एक बार कमिटमेंट लिया है तो मैं अपने कमिटमेंट के लिए सब कुछ लगाने के लिए तैयार हूं। मैं पूरा एफर्ट करूंगा, पूरी शिद्दत के साथ में काम करूंगा। बस ये अपलाइन आप मुझे केवल गाइड करते चले, जैसा आप मुझे बताएंगे वैसा करने वाला हूं। तो इस इंडस्ट्री आपको हमेशा वो सब कुछ देगी जो आप इस इंडस्ट्री के अंदर सोच करके आए हैं। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, कमिटमेंट देने पड़ेंगे। हर कोई विश्वास ये सोचता है कि मैं अपनी अपलाइन से तो कमिटमेंट ले लूं कि आप मुझे सेल्स मास्टर बना रहे हैं,
पर अपने आप एजेंट बनने का कमिटमेंट नहीं करेंगे, अपने आप स्पेशल एजेंट बनने का कमिटमेंट नहीं करेंगे, पर ये कमिटमेंट आपको करने पड़ेंगे। ये कमिटमेंट आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति या आप जुड़ता है, क्या उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा वो जानता नहीं कंपनी के बारे में, क्या उस व्यक्ति को आप एजेंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन आपने 2-3 महीने अगर आपके साथ काम किया, हार्डवर्क किया और सिस्टम से आपने रूबरू करा दिया, तब आपसे एजेंट छोड़ो, आप स्पेशल एजेंट ही बना सकते हो, तब उसे आप डीलर ही बना सकते हो। सिंगल एक इनवॉइस में आपसे कुछ ही बना सकते हो, बशर्ते कि आप उसके विश्वास को तो जीत ले। पर प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों का विश्वास ही जीतना नहीं चाहते। विश्वास जीता कैसे जाता है? आपके कॉन्टिन्यूअस एफर्ट से, आपके उसके कनेक्टिविटी की वजह से आपका विश्वास जीता जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि अगर एटमी बिजनेस से 15-16 लोग इंपीएल मास्टर बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? फेथ, इफ समवन कैन डू इट, व्हाई कांट आई? आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति इस काम को कर सकता है तो मैं भी इस काम को कर सकता हूं। ठीक उस प्रकार से सचिन तेंदुलकर ने जब पहली बार वनडे के अंदर 200 मारे, दोहरा शतक मारा, उससे पहले किसी ने नहीं मारा था, लेकिन उसके बाद विश्वास आया बहुत सारे लोगों को, कहने नहीं ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। और आज ये आप एक अकेला खिलाड़ी रोहित शर्मा देखो, 3 बार 200 शतक मार चुका है, 264 रन का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के काम। तो आपको इस बात का बिलीफ होना चाहिए, अगर कोई इस कंपनी से पिछले 2 साल के अंदर, पिछले 2 साल से लेकर 2.5-2 साल के अंदर अगर 12 लाख रुपए महीना कमा सकता है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते इससे 12 से 13 लाख रुपए महीने के अंदर? ये आपको विश्वास करना पड़ेगा, खाली विश्वास। और ये विश्वास इतनी बड़ी पावर है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको कुछ भी करवा सकती है। मैं सेशन आई थिंक मुझे आधे घंटे का टाइम दिया और आधे घंटा लगभग पूरा होने जा रहा है। मैं अपना सेशन एक छोटी सी स्टोरी से आपको, क्योंकि मेरा फेथ है, मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास इतना अडिग है इस कंपनी के ऊपर कि मैं इससे इंपीएल मास्टर होकर के जरूर जाऊंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किस प्रकार का विश्वास मुझे एटमी के ऊपर है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार क्या होता है, एक बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग के पास एक बरगद का पेड़ था और एक नदी थी। होता है क्या, उस बिल्डिंग में एक बार आग लग जाती है, और जैसे उस बिल्डिंग में आग लग जाती है, जो वृक्ष था, जो बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर 2 पक्षी निवास करते थे, एक काला कौवा और एक चिड़िया। आग लग रही थी, लोग कुछ भी जो भी उनके पास सामान था लेकर के आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। किसी के पास बाल्टी था, किसी के पास कुछ बकेट था, वो फटाफट उठाते लेकर के जा रहे थे। लेकिन ये सारी घटना बैठे दोनों पक्षी बरगद के पेड़ पर देख रहे थे। लेकिन कुछ थोड़ी देर के बाद में उस चिड़िया से रहा नहीं गया, और वो क्या करती है, अपनी चोंच भरती है, जा करके डाल करके आती है बिल्डिंग के ऊपर, चोंच भरती है, डाल करके आती है उसके ऊपर। ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था काला कौवा, और उससे भी वो तिलमिला उठा और उसने कहा, हे बेवकूफ चिड़िया, क्या कर रही है तू? हे बेवकूफ चिड़िया, तू कर क्या रही है? तुझे पता है तेरी एक चूंच में जो तू पानी लेकर के जा रही है, इससे आग का एक शोला नहीं बुझ पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप उसका आंसर सुनना तो आपको एक सीख मिलेगी, उसका विजन मिलेगा। उसने कहा, हे काले कौवे, ये मुझे पता है, मेरी चोंच भर बूंद से इस आग का एक शोला नहीं बुझ पाएगा, लेकिन यही मुझे पता है, जब इस बिल्डिंग का इतिहास लिखा जाएगा, वहां मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। ठीक उसी प्रकार से जब एटमी इंडिया का नाम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कभी आएगा, तो यहाँ पर एटमी इंडिया का नाम लोगों को रोजगार देना, एक ऐसी कंपनी प्रोवाइड कराने में आएगा जो लोगों के विजन के साथ कनेक्ट करके उन्हें एक एथिकल कंपनी, एक ऐसा प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम देने काम आएगा जो आज नहीं और एक नया कीर्तिमान आने वाले टाइम में एटमी इंडिया नंबर 1 पर होगी, हम लोग नंबर 1 पर होंगे, बशर्ते कि हम अपने ऊपर विश्वास करें और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले। थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, आधे घंटे का समय दिया। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। ओवर टू ललित सर। एक्सीलेंट सेशन सर, एक्सीलेंट स्पीच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जैसा मैंने आप सब लोगों से वादा किया था कि आज का सेशन एटमी के एलाइट ग्रुप के सेशंस में सबसे शानदार सेशन होगा। तो जैसा कि आप सब लोगों ने खुद एहसास किया होगा, मेरे खुद के गुज़िबम खड़े हैं अभी तक, और मैं फील कर रहा हूं उस एनर्जी को, उस ऑरा को, जो आप सब लोग भी शायद फील कर रहे होंगे। और अभी हमारे साथ लगभग 387 पार्टिसिपेंट्स हैं, और ये सब वही ड्रीमर्स हैं, ये सब वही इंपीएल मास्टर हैं जो कि इस जर्नी को एंजॉय करेंगे। कहते हैं, कुल्हाड़ी में लकड़ी का जस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। और इसी तरह से एलाइट ग्रुप के साथ अगर आप लोग प्लग रहेंगे तो एटमी में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। राइट, यही वो एक सफलता की सीढ़ी है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने अपना कीमती समय दिया। और स्पेशल थैंक्स
इलाइट ग्रुप के माध्यम से मैं दोनों स्पीकर को करना चाहूंगा। इतना वैल्यूबल टाइम और इतना एनर्जी के साथ और इतने सारी चीजों को आपने कवर किया है, थोड़ा टाइम ज्यादा गया, लेकिन वो सब जो आपने यहाँ डिलीवर किया है वो सच में माइंड ब्लोइंग था। और आज के सेशन को हम एंड की तरफ लेकर जाएंगे, उससे पहले मैं जो हमारा इलाइट कोर ग्रुप है उसकी परमिशन लेना चाहूंगा। क्या हम सर सब लोग सर वाइंड अप की तरफ चलें और कंपनी मोटो के साथ? यस यस सर, यस प्लीज। थैंक यू सो मच सर। तो हम सब लोग फिर एक बार एक साथ तैयार हैं कंपनी मोटो के लिए। चेरिश Yes. द स्प्रेड, चेरिश का स्प्रेड, गुड नाइट। Good night. प्रीत सर मीटिंग क्लोज प्रिंसिपल सर, हाँ सर आप होस्ट हैं सर, क्लोज कर दीजिएगा।